हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम रीडिंग और इस लेसन का मीनिंग समझेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं पहले पूरा लेसन रीड करती हूँ, उसके बाद इसका मीनिंग समझाती हूँ। वैसा ही हम आज भी करेंगे ताकि आपको थोड़ी लिसनिंग की प्रैक्टिस भी मिले। मैं यही चाहती हूँ कि आप इंग्लिश भाषा को सुन के समझें, इसीलिए मैं पहले पूरी रीडिंग करती हूँ, उसके बाद मीनिंग समझाती हूँ। क्योंकि हम तुरंत अगर ट्रांसलेट करते जाते हैं तो इंग्लिश सुनने की आपको आदत नहीं पड़ती है। उसी कारण से ऐसा होता है कि जब हमारे सामने कोई लगातार इंग्लिश में बात कर रहा होता है तो हमें वो बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इंग्लिश को सुने, और मैं यही चाहती हूँ कि आपको सुनने की आदत हो। और जब आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इंग्लिश समझ में आने लग गई, और मीनिंग तो फिर मैं समझाऊंगी ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझा देती हूँ, ताकि मैं जब रीड कर रही हूँ तभी आपको ये लेसन थोड़ा थोड़ा समझ आ जाए। शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम? आप क्या बनना चाहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है हम नए लाइफ में एक गोल सेट करें। हम क्या बनना चाहते हैं ये निश्चित करें, तभी हम उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर हमें यही नहीं मालूम कि हम क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे? हो सकता है हम किसी गलत दिशा में चले जाएं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना गोल सेट करें। सोचें कि क्या चाहते हैं आप। इस लेसन में कुछ बच्चे हैं जो अपनी टीचर के साथ भेड़ा घाट घूमकर वापस आ रहे हैं। वो एक टिकट कलेक्टर को देखते हैं, और उनमें से एक बच्चे को जिज्ञासा होती है कि टिकट कलेक्टर कैसे बनते हैं। और फिर वो अपनी टीचर से सारे क्वेश्चन करते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के बारे में सवाल पूछते हैं और टीचर उसका जवाब देती हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, और आप सबके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो। क्योंकि ऐसे सवाल एक स्टूडेंट के मन में ज़रूर आने चाहिए, तभी वो सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो चलिए पहले हम इसको रीड करते हैं। What would you like to become? Who treats a patient? एक मरीज को कौन ठीक करता है? How can you become a doctor? आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? पूजा, चारू, भोला, हनीफ, रफीक and Anil were coming back from Bhedaghat. They were accompanied by their teacher, Mrs. Sinha. All of them came to Bhopal by the Narmada Express. From Bhopal, they had to go to their places by bus. At the platform, there were ticket collectors who were collecting tickets from the passengers. Charu was eager to know how a person can become a ticket collector. So she asked Mrs. Sinha, the teacher, "Excuse me, ma'am, how can one become a ticket collector?" Teacher: One can become a ticket collector by passing the examination of the Railway Recruitment Board. Charu: Please tell me, what is the minimum qualification to become a ticket collector? Teacher: A person who has passed the higher secondary examination can become a ticket collector. Charu: Thank you, ma'am. Bhola: Ma'am, I want to become a doctor and serve the patients. Please tell me, how can I become a doctor? Teacher: First of all, you should pass the higher secondary examination with physics, chemistry, and biology. Then you can appear in an entrance exam called pre-medical test, PMT. After qualifying this, one can get admission in the allotted medical college. Bhola: Thank you, ma'am. Hanif was listening to the teacher carefully. He was eager to say something. Teacher: Hanif, do you want to say something? Hanif: Yes, ma'am. I don't know how to become a teacher. Does it need any training? Teacher: One must have at least a diploma in education, DED, or a degree in education, BEd, to become a teacher. Hanif: Thank you, ma'am. Anil: Excuse me, ma'am.
Could you tell me what is an engineer? Teacher: Sure. An engineer is a person who designs machines, buildings, and roads, etc. Anil: Pardon me, ma'am. How can I become an engineer? Teacher: You should pass the higher secondary examination with higher mathematics, physics, and chemistry. Then you can appear in an entrance examination called the pre-engineering test. After qualifying this examination, one can get admission in the allotted engineering college. Anil: Thank you very much, ma'am. Teacher: You are welcome. My dear students, besides these professions, there are so many other good and challenging services as well. We will discuss about them sometime later. By this time, the bus arrived and all of them got into it. They came to their homes with bright dreams in their eyes. Pooja, Charu, Bhola, Hanif, Rafiq, and Anil were coming back from Bhedaghat. पूजा, चारू, भोला, हनीफ, रफीक और अनिल भेड़ाघाट से वापस आ रहे थे. They were accompanied by their teacher, Mrs. Sinha. वो अपनी टीचर मिसेस सिन्हा के साथ थे. All of them came to Bhopal by the नर्मदा एक्सप्रेस. वो सभी नर्मदा एक्सप्रेस से भोपाल वापस आए. From Bhopal, they had to go to their places by bus. और भोपाल से उन सभी को बस से अपने स्थान पे जाना था. At the platform, there were ticket collectors who were collecting tickets from the passengers. और जो प्लेटफॉर्म था, जो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे उन्होंने टिकट कलेक्टर देखा, जो टीटी होते हैं, जो टिकट चेक करते हैं, उनको देखा, जो सभी यात्रियों से उनकी टिकट ले रहे थे. चारू was eager to know how a person can become a ticket collector. और उन्हें देख के चारू को जिज्ञासा हुई कि हम टिकट कलेक्टर कैसे बन सकते हैं. So she asked Mrs. Sinha. इसीलिए उसने फिर अपनी टीचर से पूछा, Excuse me, ma'am, how can one become a ticket collector? इंग्लिश में जब हम किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं तो एक्सक्यूज मी का प्रयोग करते हैं. ये एक इंग्लिश में जो बातचीत में एक जनरल टर्म है, जो एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, इस तरह से यूज किया जाता है. और वो मैम से पूछती है कि हाउ कैन वन बिकम अ टिकट कलेक्टर, हम कैसे टिकट कलेक्टर बन सकते हैं. टीचर: वन कैन बिकम अ टिकट कलेक्टर बाय पासिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड. तो मैम बताती है कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा परीक्षा कराई जाती है, जिसको पास करके हम टिकट कलेक्टर बन सकते हैं. चारू: प्लीज टेल मी व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ टिकट कलेक्टर. तो चारू पूछती है कि प्लीज मुझे बताइए कि टिकट कलेक्टर बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए. टीचर बोलती है, अ पर्सन who has passed the higher secondary examination can become a ticket collector. कोई भी व्यक्ति जिसने हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मतलब 12वीं की परीक्षा पास कर ली है, वो टिकट कलेक्टर बन सकता है. मतलब वो टिकट कलेक्टर का एग्जाम दे सकता है. ठीक है, टिकट कलेक्टर का एग्जाम देने के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो 12वीं पास होना चाहिए. चारू कहती है, थैंक यू मैम. फिर भोला पूछता है, मैम, I want to become a doctor and serve the patients. Please tell me how can I become a doctor? भोला पूछता है कि मैम, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मरीजों की सेवा करना चाहता हूँ. प्लीज मुझे बताइए कि मैं डॉक्टर कैसे बन सकता हूँ. टीचर: फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड पास द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो मैम कहती हैं, सबसे पहले आपको 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से करनी होगी. उसके बाद देन यू कैन अपीयर इन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉल्ड प्री मेडिकल टेस्ट, PMT.
उसके बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको बैठना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम मतलब प्रवेश परीक्षा जिसे कहते हैं, उसमें आपको बैठना पड़ेगा, जिसका नाम है प्री मेडिकल टेस्ट, PMT। ये देखिए, प्री मेडिकल टेस्ट ना पहले कहा जाता था, अब उसका नाम बदल के नीट हो गया है, NEET, नीट। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। आफ्टर क्वालिफाइंग दिस वन कैन गेट एडमिशन इन द अलॉटेड मेडिकल कॉलेज। जब आप इसको क्वालिफाई कर ले, क्वालिफाई मतलब एक मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए होते हैं उस परीक्षा को पास करने के लिए, क्वालिफाई होता है। और उसके बाद जो हाईएस्ट मार्क्स के हिसाब से रैंकिंग होती है, और रैंक के हिसाब से मेडिकल कॉलेज अलॉट होते हैं। जिस कॉलेज में आपका नाम आया है उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। भोला, थैंक यू मैम। हनीफ वॉज लिसनिंग टू द टीचर केयरफुली, ही वॉज एगर टू से समथिंग। हनीफ बहुत ध्यान से टीचर की बात सुन रहा था और वो कुछ कहना चाहता था। टीचर, हनीफ डू यू वांट टू से समथिंग? तो टीचर को समझ आ जाता है और वो पूछती है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तो हनीफ कहता है, यस मैम, आई डोंट नो हाउ टू बिकम अ टीचर, डज इट नीड एनी ट्रेनिंग? हनीफ बोलता है कि मैम मुझे नहीं पता कि टीचर कैसे बनते हैं, क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत होती है? टीचर कहती है, वन मस्ट हैव एटलीस्ट अ डिप्लोमा इन एजुकेशन, DED, और अ डिग्री इन एजुकेशन, BEd, टू बिकम अ टीचर। तो टीचर बताती है कि अगर आपको टीचर बनना है तो कम से कम डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो कि 12वीं के बाद होता है, डिप्लोमा किया जाता है, DEd बोलते हैं जिसको, या फिर डिग्री इन एजुकेशन, जो कि ग्रेजुएशन, मतलब आपको 12वीं के बाद कॉलेज ग्रेजुएट होने के बाद डिग्री ऑफ एजुकेशन आप कर सकते हैं टीचर बनने के लिए। हनीफ, थैंक यू मैम। अनिल, एक्सक्यूज मी मैम, कुड यू टेल मी व्हाट इज एन इंजीनियर? अनिल, फिर अनिल पूछता है, एक्सक्यूज मी, या फिर से वो अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए बोलता है और पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं कि इंजीनियर क्या होता है? टीचर बोलती है, श्योर, एन इंजीनियर इज अ पर्सन हु डिजाइन्स मशीन्स, बिल्डिंग्स एंड रोड्स एटसेट्रा। तो मैम कहती है, हाँ बिल्कुल, एक इंजीनियर वो इंसान होता है जो कि मशीन्स, बिल्डिंग और रोड डिजाइन करता है। अनिल, पार्डन मी मैम, हाउ कैन आई बिकम एन इंजीनियर? देखिए यहाँ पे जैसे एक्सक्यूज मी एक फ्रेज यूज किया था, वैसे यहाँ पे अब अनिल ने पार्डन मी मैम कहा। तो एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है मुझे माफ़ करें। तो वो क्योंकि अपने टीचर से बात कर रहे हैं और उनको सम्मान देना चाहते हैं, इसीलिए वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे एक्सक्यूज मी, पार्डन मी मैम। तो पूछता है, हाउ कैन आई बिकम एन इंजीनियर? वो पूछता है कि मैं इंजीनियर कैसे बन सकता हूँ? टीचर कहती है, यू शुड पास द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विथ हायर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो वो बताती है, अगर इंजीनियर बनना है तो आपको हायर सेकेंडरी मतलब जो 12th है वो आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से पास करना होगा। देन यू कैन अपीयर इन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉल्ड द प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। उसके बाद आप एक प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जिसका नाम है प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। प्री इंजीनियरिंग टेस्ट पहले कहा जाता था, अब इसका भी नाम चेंज हो गया है और इसको अब JEE कहा जाता है, जिसको जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहते हैं, जो कि इंजीनियरिंग की एडमिशन के लिए लिया जाता है। आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन वन कैन गेट एडमिशन इन द अलॉटेड इंजीनियरिंग कॉलेज। इसमें भी कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपके जितने मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से रैंकिंग होती है और फिर रैंकिंग के हिसाब से आपको इंजीनियरिंग कॉलेज अलॉट होते हैं और जो अलॉट होता है उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अनिल, थैंक यू वेरी मच मैम। टीचर, यू आर वेलकम। माय डियर स्टूडेंट्स, besides these professions, there are so many other good and challenging services as well. We will discuss about them sometime later. फिर टीचर कहती है, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने जिन प्रोफेशंस के बारे में मुझसे पूछा, इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे और चैलेंजिंग प्रोफेशन होते हैं जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। By this time the bus arrived and all of them got into it. और तब तक
बस आ जाती है। जैसे कि वो लोग स्टेशन पे वेट कर रहे थे, तभी उनकी बस वहाँ पर आती है। They came to their homes with bright dreams in their eyes. बस आ जाती है, सब उसमें बैठ जाते हैं और फिर वो सब अपने घर पहुँचते हैं आँखों में सपने लिए हुए। तो मुझे लगता है इस लेसन को पढ़ते हुए आपके मन में भी बहुत सारे विचार आए होंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं। और इस लेसन के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से आपको बताया भी गया है कि अगर आपको जैसे डॉक्टर बनना है तो आपको बायो लेना होगा, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स पढ़ना होगा। और वो पढ़ने के लिए आपको अभी से ही पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी होगी। नहीं तो कई बार हम अभी तो पढ़ते नहीं हैं, सोचते हैं कि हम डॉक्टर बने, लेकिन 10th में जाके पता चलता है कि हमें बायो मिल ही नहीं सकता क्योंकि हमारे उतने मार्क्स ही नहीं आए एग्ज़ाम में। तो बहुत ज़रूरी है अभी से पढ़ाई की हैबिट डालना। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।